أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ سورۃ التوبہ کا یہ 15واں رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس رکوع کی ابتدائی 3 آیتیں تو پچھلی آیتوں کی تاکید اور وضاحت کر رہی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا تذکرہ فرمایا۔ سن 9 ہجری میں گرمی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوا تھا تبوک کے مقام کی جانب، جو مدینہ منورہ سے دور دراز ہے، جو روم کی سرحد پر ہے۔ اس کے بعد رومی سلطنت کا ایک حصہ ملک شام شروع ہوتا ہے۔ چونکہ دشمن لمبا چوڑا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، اور یہ اعلان کیا تھا ایک بڑے دشمن سے بہت دور جا کر لڑنا ہے، 1 لاکھ سے زائد دشمن ہیں، لہذا مدینہ منورہ اور اطراف و اکناف کے سارے مسلمانوں کو اس جنگ میں شریک ہونا ہے۔ 30,000 کا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوا، اور بغیر جنگ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو رومی لشکروں کے دل میں ایک رعب اور ڈر پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ واپس بھاگ گئے، سرحد کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک پہنچے، کئی دن انتظار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، نہ مدینے کے لوگوں کو اور نہ ہی اطراف و اکناف کے دیہاتیوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ ان یتخلف عن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول سے وہ پچھڑ جائیں، پیچھے رہ جائیں، ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلے میں شامل ہونے کی دعوت دیں تو کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھے رہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پکار اور بلانے کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ اندازہ کیجئے ہم نماز کس بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ ہم نماز اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بتلائی۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وحی پہنچائی۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کے رسول نے پہنچایا۔ اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو آپ بیچ سے ہٹا دیں تو نہ نماز نماز ہے، نہ قرآن مجید قرآن مجید ہے۔ کس پر یقین کر کے ہم کہہ رہے ہیں یہ وحی الہی ہے؟ پورا کا پورا دار و مدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر۔
चुनाचे एक सहाबी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, नाम लेके इधर आ जाओ, और उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने बुलाया तो तुमने देर क्यों की? तो उन्होंने कहा मैं नमाज पढ़ रहा था। कहा मेरे बुलाने के बाद नमाज नहीं है, तुमको नमाज तोड़नी चाहिए थी। अल्लाह के रसूल का मामला है, लाजमी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ कहें तो पहुंचना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ आइन है। और वजाहत के साथ मैं कह दूं कि अगर किसी से कह दे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम करो तो फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ है, वो अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा फरमाया, तुम में से कोई शख्स असर की नमाज न पढ़े मगर किले बनु कुरैज़ा में जाकर घोड़े दौड़ा दिए सहाबा ने, वो जो भी उनकी जमात थी 150 की, दौड़ते चले गए। सूरज गुरूब होने जा रहा है और अब पहुंचना मुश्किल हो रहा है, दूर है वो किला। तो रास्ते में बाद सहाबा ने नमाज पढ़ ली कि असर कज़ा हो जाएगी, और बाद सहाबा ने कहा हम नमाज नहीं पढ़ेंगे कि अल्लाह के रसूल ने कहा है फला जगह पढ़ो, कज़ा हो जाए हम उसी जगह पे पढ़ेंगे। तो हुक्म रसूल इतना अहम है। तो फरमाया कि जब अल्लाह के रसूल ये कह रहे हैं कि तुमको जंग पर निकलना है, हमारे साथ चलना है, तो मदीने वालों को ये इख्तियार नहीं है, और न ही वमन हौलहु मिनल आराब। आराब इससे पहले वजाहत कर चुका हूँ, आराबी देहाती अरबों को कहते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मदीने मुनव्वरा के इर्द गिर्द अतराफ अकनाफ में जो आराब हैं, जो देहाती हैं, उनके लिए बिल्कुल ये सज़ावार नहीं, मुनासिब नहीं, उनको ये इख्तियार नहीं है यतखल्लफ़ रसूलिल्लाह के घरों में बैठे रह जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह जाएं। वला यरग़बु बिअन्फुसिहिम अन नफ्सिही, और अपनी जानों को रसूल के जान के मुकाबले में ज़्यादा वो अजीज़ न समझे, उसमें ज़्यादा रग़बत न रखें, अपनी जान की कोई हैसियत नहीं काम। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी का हक मुसलमानों के अपने जानो माल से कहीं ज़्यादा है। मशहूर वाक़या है, आपने बारहा सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, उमर जब तक कि मैं तुमको तुम्हारे बाल बच्चों, तुम्हारी माल दौलत और तुम्हारी जान से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊं, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं। तो हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे बच्चों से और मेरी दौलत से तो आप बहुत अजीज़ तर हैं, लेकिन जान के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आपने सीने पे हाथ मारा और कहा जब तक कि तुम्हारी जान से भी ज़्यादा मैं अजीज़ तर और हबीब और महबूब ना हो जाऊँ, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होगा। तो हज़रत उमर कहते हैं कि मेरा दिल मुतमईन हो गया और मैंने कहा अल्लाह के रसूल, अब आप मेरी जान मेरे दिल से भी कहीं ज़्यादा अजीज़ तर है। तो ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता वला यरग़बु बिअन्फुसिहिम अन नफ्सिही, कि नफ्से नबी की ज़ात के मुकाबले में अपनी ज़ात तुम्हारी ज़्यादा अजीज़ तर ना हो, उसमें तुमको ज़्यादा रग़बत ना हो। नबी जा रहे हैं महाज पर और नबी सफ़र कर रहे हैं, और अभी एक वाक़या आने वाला है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ उठाए, नबी तकलीफ़ उठाए और मोमिन घर में बैठ के मौज उड़ाए, ये हो नहीं सकता। लिहाजा फरमाया कि देखो तुमको हरगिज़ ये नहीं करना चाहिए था, तुम घर में बैठे रह जाओ। और आप जानते हैं कि मुनाफिकीन ने आ के कहा था हम घर में बैठे रहे इसलिए कि तबीयत ख़राब थी, बुखार आ गया था, बीवी की तबीयत ख़राब थी, ये था वो था, झूठी उन्होंने माज़रतें पेश की थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राह शफ़क़त, वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे, लिहाजा अज़राह शफ़क़त आपने उनकी बातें कबूल कर ली, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ये झूठी माज़रतें कबूल नहीं की। और अल्लाह ताला ने ये वही नाजिल फरमाई कि ये मुनाफिक हैं, ये मर जाएं तो आप इनकी नमाज जनाजा ना पढ़ें और ना आप इनकी दुआएं मग़फ़िरत करें, ना आप इनकी कब्र के पास जाएं। तो अल्लाह ताला ने तो बहुत सख्त हुक्म नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुमको निकलना चाहिए, और मुनाफिकीन ने कहा कि हमको हमारे साथ ये परेशानी है, वो परेशानी है। और एक दूसरा तबका था जो 10 लोग थे जो बड़े अच्छे ईमान वाले थे, लेकिन हीलों और बहानों की वजह से नहीं निकल सके। और उन 10 लोगों में से 7 तो खुद अपने आप को उन्होंने सज़ा दे ली थी। 3 के सिलसिले में अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल फरमाया था कि इन तीनों का पूरा बाइकआउट किया जाए,
50 दिन का उनका मुकाता रहा, बाइकआउट रहा। चूँकि ये 50 दिन का सफ़र था, इसीलिए 50 दिन मुकम्मल होने के बाद उन तीनों से बातचीत की इजाज़त दी गई। वाला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू कह के कि वो 3 लोग जो पीछे रह गए थे अब उनको माफ़ किया जा रहा है, उनकी तौबा कबूल की जा रही और उनका वाक़या गुज़र चुका है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि किसी को इजाज़त नहीं है कि घर में बैठा रहे और कोई झूठी माजरत करे तो काबिल कबूल नहीं होगी, सबको निकलना है। और ये इसलिए कि ज़ालिका बिअन्नहुम ला युसीबुहुम दमउन, और याद रखो कि ये कोई फ्री सफ़र नहीं है, बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है। वो अजर क्या है कि ज़ालिका बिअन्नहुम ला युसीबुहुम दमउन वला नसबुन वला मखमसतुन फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये इसलिए है कि इस रास्ते में जो तुमको प्यास लगेगी, जो थकन होगी, जो उलझन पेश आएगी, वला यतऊना मौतिया, और जिस जगह से तुम गुज़रोगे यगीज़ुल कुफ़ारा, जिससे अहले कुफ्र को तकलीफ़ पहुँचेगी, बुरा लगेगा कि तगड़ा काफ़िला जा रहा है, उनके दिलों में गैज़ व ग़ज़ब पैदा होगा, जलसी पैदा होगी। और इसके साथ साथ तुम जो भी प्यास से दो चार हो जाओगे, जो उलझन से दो चार हो जाओगे, जो किसी इलाके से तुम गुजरोगे, वला यनालूना मिन अदुव्विन नैला, और दुश्मन से तुमको कांटा भी चुभ जाए, थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंच जाए, इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह, वो अमल सालेह की लिस्ट में लिखा जाएगा। वो अजर ही अजर है, पूरा का पूरा सफ़र अजर है, एक एक कदम तुम्हारा लिखा जाएगा। कांटा चुभ रहा है लिखा जाएगा, प्यास लग रही है लिखा जाएगा, पसीना आ रहा है लिखा जाएगा, हर तरह का तुमको अजर मिलेगा। याद रखो इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, नेकोकारों के अजर को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। वला युनफिकून नफ़क़तन सगीरतन वला कबीरतन, और छोटी सी भी कोई चीज़ तुम खर्च करोगे या बड़ी कोई चीज़ खर्च करोगे, छोटा इन्फाक हो या बड़ा इन्फाक हो, थोड़ा बहुत सदका करो या बड़ी तादाद में सदका करो। वला यक़ताऊन वादिया, कोई वादी तय करो, कोई रास्ता तय करो, इल्ला कुतिबा लहुम लियज्ज़ियहुम, मगर ये कि वो लिख लिया जाएगा ताकि अल्लाह ताला तुमको जज़ा इनायत फरमाए। लियज्ज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यामलून, जो कुछ कर रहे हो उससे बहुत बेहतर अजर इनायत फरमाए, बहुत इजाफे के साथ अजर इनायत फरमाए। ये अल्लाह ताला ने तहैया फरमा लिया, तो फिर घर बैठे रहने की क्या ज़रूरत है। किसी ममलकत ने, किसी हुकूमत ने ये कह दिया है कि हम तुमको मुलाजमत दे रहे हैं, तुमको बैठने पे, तुमको उठने पे, तुमको चलने पे, तुमको बोलने पे, तुमको खाने पे, हर चीज़ पे अलाउंस दिया जाएगा, तो आप सोचिए ऐसी नौकरी कोई क्यों ना करे। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है तुम सफ़र करो, सफ़र में जो थकन होगी, सफ़र में जो प्यास लगेगी, सफ़र में जो भूख लगेगी, सफ़र में जो दिक्कत, जो परेशानी पेश आएगी, सब की सब अल्लाह की राह में है और सारी चीज़ों पे तुमको अजर मिलता चला जाएगा। लिहाजा अब इसके बाद अजर भी मिल रहा है और रसूल की इताअत भी फ़र्ज़ और वाजिब है, फिर इसके बाद घरों में बैठे रहने की तुम्हारे लिए क्या गुंजाइश हो सकती है। लिहाजा जब तुमसे कहा जाए कि निकलो अल्लाह की राह में, तो निकल पड़ो। अल्लाह ताला ने ये ताकीद फरमाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सराहत फरमा दी इस मौके पे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ लोग मदीने मुनव्वरा में बैठे हुए हैं, कुछ लोग मदीने मुनव्वरा में बैठे हुए हैं, लेकिन तुम जैसे जैसे सफ़र तय कर रहे हो, नशब फराज तय कर रहे हो, थक रहे हो और परेशान हो रहे हो, तो तुमको जितना अजर मिल रहा है वो मदीने में बैठे हुए लोगों को भी अजर मिल रहा है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल मदीने में बैठे हुए हैं उनको कैसे अजर मिल रहा है? फरमाया कि वो पूरी निकलने की नीयत थी, लेकिन वो शदीद बीमार हो गए, नहीं निकल सके, उज़्र की वजह से निकल नहीं सके, मुसीबत आ गई निकल नहीं सके। ऐसे लोगों को नीयत चूँकि अच्छी थी, इसीलिए ये पूरे सफ़र का उनको अजर मिलेगा। चंद सहाबा थे ऐसे वाक़तन जिनके बारे में सीरत में आता है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, बुक्काइन कहते हैं, खूब रोने वाले। अल्लाह के रसूल के पास आए, वो हाजिर हुए और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हम भी इस सफ़र में चलेंगे, हमको एक सवारी मिल जाए, हम भी आपकी खिदमत में रहना चाहते हैं। लेकिन उनमें से कोई शदीद बीमार हो गया, किसी के पास कुछ नहीं था कि वो चल सके, रो पड़े। अल्लाह ताला ने उनके रोने का तज़किरा फरमाया।
अल्लाह ताला ने उनके रोने का तज़किरा फरमाया और रो रो के वो तड़प गए लेकिन सफ़र नहीं कर सके। 2-4 लोग ऐसे भी थे, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजर में उनको भी शामिल कर लिया, क्योंकि उनकी नीयत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान फरमाया करते थे कि देखो अगर नीयत हो तो तुमको अजर मिलता है। कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स नियत करके रोज़ाना तहज्जुद के लिए उठता है और एहतिमाम करता है, अचानक वो बीमार हो गया तो फरमाया जितने दिन बीमार रहा तहज्जुद अदा नहीं कर सका, अल्लाह ताला उसको तहज्जुद का अजर देता है। क्यों? इसलिए कि वो अगर सेहतमंद होता तो ज़रूर पढ़ता, अब उज़्र हो गया है और बीमार हो गया है, इस काबिल नहीं रह गया बेचारा कि वो उठे और पढ़े नमाज, तो लाजमी बात है अल्लाह ताला उसको इसके उज़्र को देखते हुए अजर इनायत फरमाता है। तो हुस्ने नीयत भी कभी कभी बहुत काम करा लेती है। नीयत अगर अच्छी हो, पुख्ता हो, आज़म अगर रासिक हो, इसीलिए तो ये इरशाद फरमाया कि हज के लिए निकला था, अभी सफ़र शुरू ही हुआ, बेचारा इंतकाल कर गया, उसको पूरे हज का अजर मिलेगा, पूरे हज का उसको अजर मिलेगा। क्यों? इसलिए कि नीयत थी और उसने काम शुरू कर दिया था, लेकिन अल्लाह ताला के फैसले के आगे वो मजबूर हो गया, लिहाजा अजर उसको पूरा मिलेगा। तो इसी बुनियाद पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ लोग नीयत उनकी इतनी अच्छी थी, वाक़तन निकलना चाह रहे थे और उन्होंने निकलने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन हबसहुमुल मर्द, ऐसा मर्ज उनको गिरफ्तार कर लिया कि वो नहीं निकल सके, शदीद वाक़तन बीमार हो गए। नीयत अच्छी है, लिहाजा तुम्हारे पूरे सफ़र का अल्लाह ताला उनको अजर इनायत फरमा रहा है। तो ये आयतें, ये दोनों आयतें इसी तबूक के सफ़र के सिलसिले में गोया ताकीद कर रही है कि देखो ऐसी सूरत में तुमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना था, घरों में बैठने की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इसके बाद एक और हकीकत को अल्लाह ताला ने नुमाया किया और वो किस कदर अहम होगी आप उसका अंदाज़ा कीजिए कि ये सफ़र तबूक है। इस सफ़र को अल्लाह ताला ने निफाक और ईमान के दरमियान फ़र्क करने वाली एक गोया के अलामत बना दिया। अल्लाह ताला ने एक ऐसा इम्तिहान बताया इस सफ़र को कि इस इम्तिहान में जो कामयाब हुआ वो रासिकुल अकीदा, पक्का ईमान वाला, और इस इम्तिहान में जो नाकाम हुआ उसको मुनाफिक करार दिया गया। और गलती से भी जो इस सफ़र में शामिल नहीं रहे उनका बाइकआउट हुआ, उनको सज़ा दी गई और उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये सफ़र एक तरह से कसौटी था, ये सफ़र एक तरह से मेयार था कि कौन ईमान वाले हैं, कौन ईमान में पक्के नहीं हैं, ये बताने के लिए। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस सफ़र में घरों में बैठे रहने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने इस सफ़र में सुस्ती करने वालों को पसंद नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने इस सफ़र में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दे सके उनकी सरजनिश फरमाई। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला एक बात इरशाद फरमाता है, वो क्या इरशाद फरमा रहा है? वमा कानल मुमिनून लियंफिरू काफ़ा, मोमिनों के लिए ये सज़ावार नहीं, ये मुनासिब नहीं कि सब के सब जंग करने के लिए मैदान जंग में निकल जाएं। देखिए क्यों नहीं निकले? फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा, क्यों नहीं उनमें से एक छोटी सी टुकड़ी, एक छोटा सा ग्रुप निकल पड़ता है, क्यों नहीं उनमें से एक छोटा ग्रुप निकल जाता है दीन सीखने के लिए, क्यों नहीं निकलता? और लियतफ़क़हू फ़िद्दीन, वो दीन को सीखे पूरी तरह, और पूरी तरह दीन को सीखने के बाद वलियुंदिरू कौमहुम, अपनी कौम की तालीम करे, अपनी कौम को आगाह करे, इज़ा रजअू इलैहिम, जब उनकी जानिब लौट कर आ जाएं, लअल्लहुम यहतरून, ताकि वो भी बच सकें, मुत्तकी हो सकें, मोहताज ज़िंदगी बसर कर सकें। फरमाया सारे मोमिनों के लिए ये मुनासिब नहीं कि सब के सब मैदान जंग में निकल जाएं, बल्कि उनमें से एक टुकड़ी ऐसी होनी चाहिए, उनमें से एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए, उसमें से कुछ फिगर ऐसा होना चाहिए जो दीन सीखने के लिए फारिग हो जाएं, दीन सीखने के लिए निकल पड़ें और दीन सीखने के लिए सफ़र करें और फिर दीन सीख लें। दीन सीख लेने के बाद अपनी कौम में तालीम का काम, अपनी कौम में इंजार का काम वो अंजाम दे। अब इसमें पहले मैं 2-3 इस्तिलाहें हैं, उन इस्तिलाहों की वजाहत कर देता हूँ। एक तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ताइफतुन,
ताइफतुन कहते हैं एक छोटे से ग्रुप को, ताइफतुन कहते हैं एक छोटी सी जमात को। मसलन ये कि 100 में से 5-6 आदमी, 10 आदमी, ऐसे को ताइफा कहेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन, उनके हर ग्रुप में से, एक बड़े ग्रुप में से एक छोटा ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि वो फलौला नफरा, वो नफीर करे, सफ़र करे, वो मेहनत करे, वो जिद्दोजहद करे, कोशिश करे, किसके लिए? तफ़क़्क़ुहु फ़िद्दीन। दूसरी अहम बात तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन है। फ़िक़्हुन से लफ्ज़ बना, आप लफ्ज़ तो बहुत सुनते रहते हैं फ़िक़ही मसाइल, और उसका आम तौर पर हम तर्जुमा करते हैं शरीयत के अहकाम के तस्किरे को, लेकिन फ़िक़्हुन अरबी में कहते हैं आला फ़हम को, ऊंचे दर्जे के फ़हम को, विज़डम को, किसी भी चीज़ की हकीकत के समझने को फ़िक़्हुन कहते हैं। और उसी से तफ़क़्क़ुह बना है। तफ़क़्क़ुह के माने होते हैं कि फ़िरासत हासिल करना, उसूल का इल्म हासिल कर लेना। लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन में तफ़क़्क़ुह के माने होते हैं दीन के उसूल से वाकिफ़ हो जाना, दीन की हकीकत से वाकिफ़ हो जाना। और ये नहीं सतही किस्म की मालूमात, मोटी मोटी ऊपर ऊपर सिर्फ किसी अखबार का जो एडिशन होता है वो पढ़कर, ज़मीमा होता है वो पढ़कर मालूमात हासिल करना, बल्कि तह में जाना, तहक़ीक़ करना, यह है तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन। तफ़क़्क़ुह जो होता है फ़िक़्ह से बुलंदतर होता है। याद रखिए, फ़िक़्ह तो आपको ये मसला बता देगा कि आपकी नमाज में क्या अरकान होना चाहिए, आपका वज़ू कैसा होना चाहिए, पाकी नापाकी के क्या मसाइल हैं, और कुआं कैसे पानी से नापाक हो जाता है, उसको पाक करने की क्या तरकीब होती है। ये वो मसाइल है जिसका ताल्लुक़ फ़िक़्ह से है। लेकिन तफ़क़्क़ुह किसको कहते हैं? तफ़क़्क़ुह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने किताब में जो अहकाम नाजिल फरमाए उनकी बुनियादें क्या हैं, अल्लाह ताला बंदों को क्या सहूलत देना चाहता है, किन चीज़ों में मशक्क़त है, दीन का मिजाज क्या है, दीन के मिजाज से क्या टकरा रही है बात, ये सारी वो बुनियादें हैं जिनका जानना तफ़क़्क़ुह कहलाता है। ये फ़िक्र इस्लामी की गोया कि एक शाख है, और फ़िक़्ह इस्लामी का नंबर उसके बाद आता है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम में से ग्रुप होना चाहिए, एक छोटा सा टुकड़ी होनी, एक छोटी सी टुकड़ी होनी चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए जो दीन की हकीकतों से वाकिफ़ हो, किताबुल्लाह से वाकिफ़ हो, नासिख़ व मनसूख़ से वाकिफ़ हो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से वाकिफ़ हो, अहादीस से वाकिफ़ हो, और फिर अल्लाह की किताब और अहादीस से अहकाम कैसे मुस्तंबत किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, उनसे वाकिफ़ हों। और फरमाया कि ये इसलिए है कि तीसरी अहम बात इरशाद फरमाई लियुनदिरु कौमहुम, इंजार इससे पहले भी मैं वजाहत कर चुका हूँ। इंजार का तर्जुमा डराने से आमतौर पर किया जाता है ताकि कौम को डराए, लेकिन ये डराने का तर्जुमा जो है ये बड़ा यानी कमज़ोर किस्म का तर्जुमा है, फीका सा तर्जुमा है। इंजार के माने होते हैं जो नबियों की सिफत है, मुंजिर नबी को कहा गया, इंजार नबियों का अमल है, तो ये इंजार के माने होते हैं शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ बुरे अंजाम से और बुरे अवाक़िब से वाकिफ़ कराना। जैसे कि एक शफ़ीक़ बाप करता है, जैसे कि एक शफ़ीक़ उस्ताद करता है कि वो अपने बेटे को समझाता है, अपनी औलाद को समझाता है। माँ बाप क्या कहते हैं, देखो अगर तुमको ये लत लग जाएगी तो तुमको ये नुकसान हो जाएगा, तड़पते हैं, रोते हैं, दुआएं करते हैं, समझाते हैं, सुबह शाम टोकते हैं, तो पीछे जो मोटिवेट करने वाली मोहब्बत है, शफ़क़त है, औलाद से जो ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर जो वो बुरे अंजाम से डरा रहे हैं, इसको इंजार कहते हैं अरबी में। ये नबियों की सिफत है, वो अपनी उम्मत को बुरे अवाक़िब से, बुरे अंजाम से, बुरे हशर से आगाह किया करते थे, और रोते थे, फिक्र करते थे, तड़पते थे, मुस्तरिब होते थे, उड़हन होती थी उनके दिल में, और हर तरह से मोहब्बत के साथ, खैरखाही के साथ और मुख्तलिफ असालिब में उसलूब बदल बदल कर वो समझाया करते थे। ये इंजार उनका शोबा है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है दीन में तफ़क्कुह हासिल करो। किस लिए? इसलिए ताकि तुम्हारा रोग पड़ जाए, इसलिए ताकि बड़ी आमदनी का ज़रिया हो जाए, इसलिए कि लोग घबराएं कि इनके पास फतवे की मशीन है, तोप है, दागते हैं फतवा तो जीना दोबर हो जाता है, लिहाजा इनके सामने मुंह बंद करो,
تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علوم اسلام علوم نبوت اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ لوگوں پر روب جھاڑے اور لوگوں کی بولتی بند کرنے کی کوشش کرے، تو وہ سن لے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کا لگام دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کا لگام دے دیں گے۔ آپ سوچئے گھوڑے کے منہ میں لگام کیسے داخل ہوتا ہے، آگ کا لگام دے دیا جائے گا۔ یہ اس لیے ہے علوم دین میں مہارت اور علوم نبوت میں مہارت اس لیے ہے تاکہ قوم کی تربیت کریں، محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کو سمجھانے کا فریضہ انجام دیں، ان کو بتلائیں۔ علماء ان کے بارے میں لکھا گیا ہے قطب نما کی طرح ہوتے ہیں۔ قطب نما جو ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ میگنیٹ کا، کہ جہاں آپ لے جائیے جس کونے میں، یہاں تک کہ آسمانوں میں آپ ان کو لے جائیے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، نارتھ پول کیا ہے، ساؤتھ پول کیا ہے، وہ آپ کو کھٹ سے بتا دے گا۔ یہ حقیقت ہونی چاہیے کہ حق بتلانے والے، سچائی بتلانے والے، دین بتلانے والے ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب قوم لوٹ کر آئے، جنگ سے فارغ ہو جائے، تجارت سے فارغ ہو جائے، ملازمت سے فارغ ہو جائے، تو ان کو دین سکھلانے والے ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھلانے کے لیے اس قدر مہمات بھیجتے تھے، گروپ بھیجتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر پوری توجہ دیتے تھے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو گروپ بھیجے گئے اسلام سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، وہ ان کی پوری ایک تاریخ ہے، اور ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں ہوئیں، ایسے ایسے حادثات ہوئے، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برداشت کیا۔ تو پہلی چیز تو ہے سیکھنا، علم حاصل کرنا، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا۔ یہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کتاب کا اور علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیروں تلے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، فرمایا۔ اور فرمایا کہ دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، فرمایا فضا میں پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سمندر میں مچھلی اس کی دعا کرتی ہے، بلوں میں کیڑے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات یہ اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے لیے مخلوق اللہ تعالیٰ کی پوری دعا کر رہی ہے۔ علم سے وابستگی بہت اونچی چیز ہے، اتنی اونچی چیز ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا دو طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہا اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ قرآن مجید سے ایک مسئلہ سیکھ رہے ہیں۔ وہاں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس ارشاد کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر، عبادت گزار کا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایسا شخص نہیں جو عبادتوں سے محروم ہے، ایسا شخص نہیں جس کو عبادتوں کا موقع نہیں مل رہا ہے، گناہگار ہے، نہیں، جس کو عبادتوں کا ذوق ہے، جو شب بیداری کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، ایسے عبادت گزار پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے۔ تشبیہ پہ آپ غور کیجئے، عبادت گزار پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جیسے میری فضیلت امت کے ادنا فرد پر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی لیے علم سے جڑنا چاہیے، علم سے وابستگی اٹوٹ ہونی چاہیے۔ علم انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے۔ یہ علوم نبوت وہ علوم نبوت ہیں جن کی وجہ سے انسان کی عبادتیں بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مطالبہ آتا کہ ہم کو پڑھانے کے لیے، ہم کو سکھلانے کے لیے، ہم کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے، قرآن کے علوم سکھلانے کے لیے کسی کو دیجئے، تو آپ بہترین افراد ان کے حوالے کرتے تھے، لے جاؤ، سیکھو، پڑھو، اپنے اندر شعور پیدا کرو۔ یہاں تک کہ آپ حیرت کریں گے، ایک مرتبہ نجد سے مطالبہ آیا کہ بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور ضرورت ہے معلمین کی، سکھلانے والوں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا انتخاب کیا
जो अक्सर और बेशतर सुफ़ा पे रहते थे, और वो लोग दिन में लकड़ियाँ काटते थे, बाज़ार में बेच लेते थे, और फिर उसके बाद से शाम से फारिग रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठते थे और उलूम सीखते थे। ऐसे 70 आदमी का इंतखाब किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत मुंज़िर को उनका अमीर बनाया और रवाना फरमाया। और एक साहब जो अभी उन्होंने इस्लाम तो नहीं कबूल किया था, लेकिन बड़े सच्चे थे और बाद में इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं काफ़िले की रहनुमाई करूँगा और इस रूट पर, इस रास्ते पर मेरे ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि मैं अमनो सलामती का मामला भी निभा लूँगा। वो लेके चले, हज़रत बरा उनका नाम है। लिहाजा लेकिन रास्ते में बीर माऊना, एक माऊना नामी कुआं है रजी के मकाम पर, वहाँ पानी के लिए काफिला पड़ाव डालता है कि अचानक हमला हुआ। और ऐसा हमला हुआ कि सारे 70 सहाबा को शहीद कर दिया गया, और उसमें से एक ही सहाबी हज़रत काब जिंदा बचे। वो भी कैसे बचे, आप अजीब व गरीब हालात है कि इन सहाबा को जब शहीद कर दिया गया तो फिर इसके बाद से एक सहाबी ने बहुत दूर से 5-6 किलोमीटर दूर से देखा कि एक इलाके में गिद्धें खूब उड़ रही हैं, चीलें खूब उड़ रही हैं। उनको हैरत हुई, ये सैकड़ों गिद्धें, सैकड़ों चीलें उधर क्यों भागती दौड़ती जा रही। लिहाजा उसी रुख पर गए तो उन्होंने देखा कि 70 सहाबा है जिनकी लाशों को गिद्धें खा रही हैं। जब उन्होंने लाशों को हटा हटा के देखा तो हज़रत काब को देखा इनमें जान की रमक बाकी है, फौरन उनको लेकर आए मदीने मुनव्वरा और उनका इलाज हुआ। तो इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा 70 शहीद हुए इल्म के रास्ते में। तो इतना रोए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना रोए कि दूसरे दिन से फजर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ने लगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बद्दुआ दी हो इसका सबूत नहीं है। ताइफ के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खून से नहा गए, और ओहद के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक में सुराख हो गया, दंदान शहीद हो गए। बद्दुआ नहीं दी, लोगों ने दरखास्त की बद्दुआ दीजिए, बद्दुआ अल्लाह के रसूल ने नहीं दी, लेकिन यहाँ आपने बद्दुआ देनी शुरू की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर फजर की नमाज बाद नाम ले के कबीले का, अल्लाह राल को, ज़कवान को, लहियान को, उसैया को ऐसे हलाक आप कर दें जैसे कि आपने कौम समूद को, कौम आद को आपने हलाक किया। ये दुआ करते रहे, यहाँ तक कि 30 दिन हो गए, 1 महीना गुजर गया और वही आई। और उसमें अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है, सहाबा की ज़बान में ये मैसेज दिया गया कि हमारी बात हमारे साथियों को पहुंचा दी जाए कि हम बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं, फराह हैं, जन्नत की नेमतों से माला माल है, हम परेशान नहीं हैं। ये वही आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआए कुनूत और बदुआ की जो दुआ थी वो ख़त्म कर दी, वरना 30 दिन मुतवातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी। ऐसे ही और एक भी वाक़या पेश आया, अजीब व गरीब वाक़या पेश आया, जिसमें लोग आए कबीले के और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हम बिल्कुल सच्चे ईमान वाले हो गए हैं, बड़ा कबीला है, सैकड़ों अफराद है, पढ़ाना ज़रूरी है, मुअल्लिमीन ज़रूरी है, तो चुन के जो अच्छा कुरान मजीद पढ़ते थे आपने सिलेक्शन किया, और उसमें हज़रत आसिम और उसमें हज़रत खुबैब और उसमें ज़ैद बिन दसन्ना, ये ऊंचे दर्जे के सहाबा 7 लोगों का इंतखाब फरमाया। कहा ये 7 लोगों को ले जाओ, बहुत तालीम याफ्ता नौजवान हैं, ये जाएंगे तुम्हारे अंदर तालीम का काम करेंगे। वो बेईमान ले गए इन लोगों को, और दरमियान में ये अचानक, जबकि रात में पड़ाव डाला हुआ है काफिला, इन 6 लोगों ने, 7 लोगों ने महसूस किया जैसे उनको घेरा जा रहा है। तो लोगों ने कहा क्या मामला है? कहा देखो सरेंडर हो जाओ, अपने पास जो भी, उस वक्त हर आदमी सफ़र करता तो हथियार रखता था, तो कहा जो भी तुम्हारे पास हथियार है वो निकाल के फेंक दो, हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम तुमको गिरफ्तार करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इन लोगों ने मशवरा किया तो इनके जो अमीर थे हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि झूठों और गद्दारों की ज़बान पे भरोसा मत करो, जब अल्लाह के रसूल को धोखा देकर हमको लाए हैं तो इन पर भरोसा करके हम सरेंडर हो जाएंगे, तो फिर इसके माने ये कि ये ज़रूर हमारे साथ गद्दारी करेंगे, लिहाजा इनके ऊपर भरोसा न करो। क्या किया जाए? कहा जितने हथियार हैं लेके उठे, लड़े, चुनाचे लड़ना शुरू किया। इनमें से 4 तो शहीद हो गए बशमुल हज़रत आसिम के, और 3 गिरफ्तार हो गए।
3 गिरफ्तार हो गए। उन गिरफ्तार होने वालों में हजरत खुबैब भी थे। हजरत आसिम वो उसी मौके पर उसी जगह पर ढेर हो गए। अब ये 3 गिरफ्तार को रस्सियों से बांध के घसीट के ले जाने लगे। तो हजरत खुबैब ने कहा काश हम भी लड़ते हुए मारे जाते, ये खबीस किस्म के लोग हैं, इनके किसी अहद व पैमा पे हम भरोसा नहीं कर सकते। हजरत आसिम ने एक दुआ की वफात के वक्त, शहादत के वक्त, कि अल्लाह हमारा जो अंजाम हो रहा है वो अंजाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मुत्तले फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई कि आपके साथियों के साथ ये गद्दारी हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कुवत भेजी, मदद भेजी, लेकिन उस वक्त तक वो दुश्मन ये 3 गिरफ्तार करके ये बेचारों को लेके चलना शुरू कर दिए। एक तो बीच में तहम्मुल नहीं कर सके, घसीट के ले जा रहे हैं मक्के की तरफ, बीच ही में वफात पा गए। 2 बचे, हजरत खुबैब बचे और एक और सहाबी बचे, हजरत ज़ैद बिन दसन्ना बचे। ये दोनों को मक्के मुकर्रमा में ले जाकर बेच दिया। अच्छा, जब पहुंच गए मक्के मुकर्रमा तो एक शख्स ने, मक्के मुकर्रमा के एक शख्स ने तय किया कि हजरत आसिम ने गज़वे ओहद में उसके बाप को शहीद किया था, गज़वे बदर में, तो हजरत आसिम के लाश के टुकड़े लाकर मक्के में जश्न करे। लिहाजा वो पहुंचा तो देखता है अजीब व गरीब बात कि जैसे कि शहद की मक्खियों का जत्था है, लाश के करीब नहीं पहुंचने दिया, लाश के करीब नहीं पहुंचने दिया, सैकड़ों मक्खियां हैं जैसे। तो बाद में मालूम ये हुआ कि हजरत आसिम ने कहा था मौला मैं तेरी राह में शहीद तो हो रहा हूं, लेकिन कोई तेरा दुश्मन मुशरिक मुझे हाथ लगा सके, मेरी लाश पाक रहे, चुनाचे वो हाथ नहीं लगा सके। बाद में खैर इस असना में अल्लाह के रसूल के नुमाइंदे पहुंच गए, उन्होंने तजीज़ व तकफीन का इंतज़ाम कर दिया। शहीद हो चुके थे और ये भाग चुके थे ये लोग। अब ये दोनों बेचारे हजरत खुबैब और हजरत ज़ैद, तो हजरत ज़ैद को तो उन्होंने सूली चढ़ा दी, हजरत खुबैब को एक साहब के हाथ बेचा और वो साहब जो है हजरत खुबैब को बरसरे आम शहीद करने का ऐलान किया। कल जब दिन चढ़ेगा तो तमाशा देखना। अब हजरत खुबैब रात में अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं। इसी असना जिन साहब ने खरीदा है शहीद करने के लिए, उनका बच्चा खेलते खेलते हजरत खुबैब के गोद में बैठ गया। छोटा सा बच्चा हजरत खुबैब के गोद में बैठा हुआ है। हजरत खुबैब उससे लाड़ प्यार करने लगे, खेलने लगे। माँ देखी तो तड़प गई कि अब मेरे बच्चे का नल्ली मत देंगे, खत्म कर देंगे, तो सुबह इनको खुद शहीद होना है, ऐलान हो गया है। तो उन्होंने कहा कि बीबी हम ये करने वाले नहीं हैं, हम ये हरकत नहीं करते, तुम्हारे बच्चे को ले जाओ, फिर खेल रहा है जब तक मेरे पास खेलेगा, उसके बाद तुम अपने बच्चे को ले जाओ, पूरे इत्मीनान के साथ कहा। तो वो बेचारी हैरान हुई इनका ये अखलाक। उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो कहती हैं कि रात में अजीब व गरीब बात ये हुई कि घबरा घबरा के मैं झांक के कमरे में देखती तो खुबैब के पास अंगूर थे, जबकि अंगूर का मक्के में कोई तसव्वुर नहीं था, मौसम ही नहीं था। रात में अल्लाह की जानिब से वो जियाफत हुई कि हजरत खुबैब अंगूर खा रहे हैं। खैर सुबह हुई, फजर हुई, रोशनी हुई, रस्सियों से बांध के खुबैब को ले जाया जा रहा है स्टेज पे कि अब इनके टुकड़े टुकड़े करेंगे, पोर पोर इनका काटा जाएगा, एक जश्न का सा समा है। तो उस वक्त हजरत खुबैब कहते हैं कि क्या मेरी रस्सियाँ खोलकर 2 मिनट का वक्त दोगे? लोगों ने पूछा क्यों? कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। लिहाजा उन रस्सियाँ खुली गई और हजरत खुबैब को मौका दिया गया। तो हजरत खुबैब ने बहुत इत्मीनान से लेकिन मुख्तसर 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेर के कहा, इतना दिल लग रहा था नमाज में, इतना दिल लग रहा था नमाज में कि जी चाह रहा था खूब लंबी पढ़ो, मगर मैंने नमाज इसलिए मुख्तसर कर दी ताकि तुम लोग ये ना समझो मैं शहादत से डर गया। मैं शहादत से नहीं डरता हूँ। अब उसके बाद से अबू सुफियान तो बहुत बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनको एक सूझी, उन्होंने कहा अच्छा खुबैब ये बताओ कि अगर तुमको छोड़ दिया जाए, अभी मैं जिसके बारे में कह रहा था, मैं इशारा करना चाह रहा था कि क्या मुसलमान का जज्बा होना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में। लिहाजा अबू सुफियान कहते हैं कि खुबैब ये बताओ कि अगर तुमको छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया जाए तो तुम्हारी क्या राय है? तो हजरत खुबैब ने कहा, नादान, अगर मैं घर में बैठा रहूं और मोहम्मद के पैर में कांटा चुभ जाए तो मुझे गवारा नहीं है, मुझे गवारा नहीं है। कहा जर्रा बराबर उनकी तकलीफ मुझे गवारा नहीं है। तो कहा शुरू करो अमल। चुनाचे उनके टुकड़े करने शुरू किए गए और उन्होंने एक शेर पढ़ा बहुत ही इत्मीनान के साथ
کہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، کس جانب گروں میں مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اگر اللہ میری شہادت قبول کر لے تو، اگر قبول ہے اللہ کے پاس تو پھر کس جانب میں گروں، میری لاش کسی جانب گرے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ امام بخاری نے صراحت کے ساتھ لکھا، وقت شہادت 2 رکعت پڑھنے کی سنت خبیب نے شروع کی، ان سے پہلے کسی نے 2 رکعت وقت شہادت ادا نہیں کی تھی۔ یہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کیوں نکلے تھے؟ علم سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے نکلے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا صرف اور صرف اس لیے وہ قوم کی تربیت کریں، لہذا علم حاصل کرنا اور علم کو پہنچانا، علم سکھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، دیکھو دنیا میں کسی چیز پہ تم رشک نہ کرو، کسی چیز پہ رشک نہ کرو، سب چیزیں آنی جانی ہیں، ہاں اگر رشک کر سکتے ہو تو 2 چیزوں پہ رشک کرو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت عنایت فرمائی، اور دولت عنایت فرمانا تو بہت عمومی بات ہے، اللہ تعالیٰ دولت تو بڑے بڑے کافروں کو بھی دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت عنایت فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا سلیقہ بھی عنایت فرمایا، تو اس پہ رشک کرو۔ جو بہت خرچ کرتا ہے فَسَلَّطَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ، فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دیا تو اس پہ خرچ کرو۔ دوسرے فرمایا ایسے شخص پر تم رشک کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور اس علم سے وہ فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، تعلیم کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اس پہ تم رشک کرو، 2 نعمتوں پہ رشک کرو، باقی ساری چیزیں ایسے ہی ہیں، آتی جاتی رہنے والی ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اعلان کر دیں ایمرجنسی ہے، جنگ ہونے والی ہے، دشمن حملہ کر رہا ہے، دشمن کی تعداد بڑی ہے اور بہت خطرناک قسم کے ان کے منصوبے ہیں، عزائم ہیں، مسلمانوں سب کے سب اپنے گھروں سے نکلو، تو سب تو نکل جاؤ مگر ایک ٹکڑی بہرحال اللہ کی کتاب کی حفاظت کے لیے، رسول کے علوم کی حفاظت کے لیے دین سیکھنے میں لگی رہے۔ سب کے سب نکل جائیں گے، سب شہید ہو جائیں گے تو آگے دوسری نسل کو اسلام کون پہنچا سکے گا؟ ختم ہو جائے گا اسلام کا سر چشمہ۔ لہذا صاف ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب کے سب نہ نکلو، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ تم میں سے ہر بڑے قبیلے میں سے کچھ لوگ وقف ہو جاؤ، فارغ ہو جاؤ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا کچھ لوگ فارغ ہو گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چبوترے پہ بیٹھ گئے تھے، دلہیز پکڑ لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو لوگ مسجد نبوی کی زیارت کر چکے ہیں انہوں نے صفہ دیکھا ہوگا، وہ صفہ ایک چھوٹا سا چبوترا ہے جس کو اب صفہ اغاوات کہتے ہیں، ترکی لوگ جس پہ اکثر و بیشتر بیٹھے رہتے ہیں، وہ صفہ تھا جس پر یہ صحابہ بیٹھے رہتے تھے اور پھر سیکھتے رہتے تھے۔ اکثر و بیشتر یہ سوال ہوتا ہے اور لوگ بہت آسانی سے حدیث کا انکار کرنے کی جرات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یادداشت کیسے انسان یاد رکھتا ہے، لیکن ان لوگوں کا کام یہ تھا اصحاب صفہ کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرما دیا وہ جملے کا مذاکرہ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، سمجھتے تھے، احکام نکالتے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں مشاعرہ سنتے ہیں، واپس آتے ہیں، راستے میں شاعر جو اشعار بولا اچھے اشعار جو پسند آ گئے دہراتے ہیں، داد دیتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، صبح پہلی نشست میں ملاقات میں، رات میں تو بس اس نے کمال کر دیا، کیا پیارا شعر کہا، کبھی نہیں سنا تھا، لہذا غزل کی غزل وہ سناتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہم نکموں سے گئے گزرے تھے کہ اللہ کے رسول کے ارشادات یاد نہ کرتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جو اتنی قربانی دیے ہوئے ہیں کہ جو کھانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ اور فرماتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ بہت حدیثیں سناتے ہیں، ابو بکر و عمر اتنی نہیں سناتے جتنی ابو ہریرہ سناتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں اس کام کے لیے فری ہو گیا تھا، بیٹھ گیا تھا، یاد کرتا رہتا تھا، مذاکرہ کرتا تھا، کھانے پینے کی فکر نہیں تھی۔ 3 دن گزر جاتے، نماز میں کھڑا، مارے کمزوری کے غشی کھا گیا، گر گیا، لوگ سمجھے مرگی کا دورہ پڑا، دوڑ کے میری ناک سے جوتیاں رگڑنے لگے۔ ارے اللہ کے بندو، نہیں تھی مرگی کی بیماری مجھے، میں تو بے ہوش تھا، میں تو کمزوری کے جیسے ڈھال تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ارشادات یاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو فری کر چکا تھا۔
ये कुर्बानियाँ थी सहाबा की, जिसकी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे उलूम मौजूद हैं। वो इरशादात अल्लाह के रसूल के इरशादात हैं, उनमें शक करना कुफ्र है, शक करना कुफ्र है। पूरे इंशरा के साथ कह रहा हूँ। आप सोचिए, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत अनस, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू सईद खुदरी, 4 8 सहाबी एक ही जुमला रिवायत कर रहे हैं। चारों ने अपने आप में गढ़ लिया घरों में नौजुबिल्ला बैठ के, और एक ही जुमला, एक ही इरशाद, बिल्कुल मुश्तरक किस्म का कैसा हो गया तैयार। सुना होगा ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, याद किया उसको, बार बार उसका मुज़ाकरा किया, एक दूसरे को पहुंचाया। और फिर ये भी बात जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की अहम हकीकतों को एक मर्तबा तकरीर करके ऐसे ही फरामोश नहीं फरमाते थे, बार बार उसको कहते थे, मुख्तलिफ मजमों में उसको कहते थे, जगह जगह कहते थे। देखो, इन्नमल आमाल बिन्नियात, इन्नमल आमाल बिन्नियात, इन्नमल आमाल बिन्नियात, जब 20 जगह आपने कहा, 20 मजमों में कहा, तरबियत करने के लिए बार बार कहा, यह साबित है कि कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खिताब में जो बात अहम होती, 3 बार इधर फिर सामने, 3 बार उसका इयादा फरमाते, तो फिर उसका याद करना बहुत आसान था। इस तरह से वो याद की जाती थी, मुज़ाकरा किया जाता था, याददाश्तों में महफूज किया जाता था, और एक नस्ल ने दूसरी नस्ल को, दूसरी नस्ल ने तीसरी नस्ल को ये सारा ज़ख़ीरा पहुंचाया, इस एहतमाम के साथ पहुंचाया कि सुनते थे पूरे एहतमाम के साथ, लिखते थे, फिर उस्ताद को सुनाते थे। उठाकर देखिए आप, उलूम हदीस में इमला अलग है, इस्तिमला अलग है, मुज़ाकरा अलग है, मुशाफहा अलग है, मुनावला अलग है। कितने अंदाजों से हदीस ली जाती थी और महफूज और रिकॉर्ड की जाती थी। आप अंदाजा लगाइए, ये सब कुछ इस उम्मत में इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला का हुक्म था कि देखो, सब के सब बारे जोश के घरों को छोड़कर निकल जाओ, जंग में चले जाओ, तिजारत में चले जाओ, मसरूफ हो जाओ, उलूम किताब, उलूम नबूवत को छोड़ दो। ऐसा हरगिज़ न करो, बल्कि तुम में से एक ग्रुप जरूर लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन का फहम हासिल करे और दीन की फिरासत हासिल करे, दीन के उलूम की वो गहराइयों में जाए, डूब जाए, और उसके बाद से फिर वो उसके मोती लाए। लियुनदिरू कौमहुम, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कौम की तरबियत करना है, कौम को आगाह करना है। इज़ा रजअू इलैहिम, जब कौम तुमसे रुजू हो, जब तुमसे आके पूछे क्या हलाल है क्या हराम है, जब तुमसे पूछे कि मुझे अच्छा लगा है। एक मर्तबा, बहुत ज़माना पहले की बात है, कि एक नौजवान अमेरिका से आया हुआ था, उसने कहा कि मुझे लंबी चौड़ी बात मत बताइए, मैं हलाल और हराम में तमीज़ करना चाहता हूँ। मैं तो आपके सामने होटल का मेनू रखूँगा, आप टिक कर दीजिए, जो हलाल है वो खाऊंगा, बाकी कट कर दीजिए, जो हराम है वो मैं उसको छोड़ दूंगा। लंबी चीज़ लंबी बहस में नहीं समझ सकता। तो अब ये कौन करेगा हलाल है, कौन बताएगा ये हराम है? वही तो बता सकता है जो दीन में तफक्को हासिल करे, फहम हासिल करे। इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहतरून, ताकि उम्मत एहतियात की ज़िंदगी बसर कर सके, हलाल और हराम में इम्तियाज़ कर सके, अल्लाह की किताब सीख सके, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सीख सके। यहाँ तुम्हारा फरीज़ा है कि इस काम के लिए तुम फारिग होने की कोशिश करो। तो एक बात तो ये कि एक टुकड़ी को फारिग होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम लोगों को इल्म से जुड़ना चाहिए। और याद रखिए, इल्म से जुड़ने के माने नहीं है आप फॉर्म भर के किसी मदरसे में दाखिला ले, कोई ज़रूरत सहाबा ने किसी भी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की। इल्म से जुड़ने के माने ये कि इल्म के जो सोर्स है किताब और सुन्नत, उससे आप जुड़ें, उसको सीखें, मनमानी अंदाज से नहीं, बल्कि वो जो किताब के, वो जो सुन्नत के माहिर हैं, उनसे जाके आप सीखें, मुताला करें, तहकीक करें, पढ़ें, याद करें। इंशाल्लाह आप जितना पढ़ते चले जाएंगे उतने दर्जात आपके बुलंद होते चले जाएंगे। एक शख्स ऐसा है जिसको 100 मसाइल मालूम है, एक शख्स ऐसा है जिसको 1000 मसाइल मालूम है। 1000 मसाइल वाला अफजल है कि नहीं 100 मसाइल वाले से? एक शख्स ऐसा है जिसको 1 लाख मसाइल मालूम है, वो बड़ा आलिम है। तो लाजमी बात है, तरतीब होती है, और उस तरतीब में दर्जे होते हैं, मरहले होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इंसान वाबस्ता हो जाए, सीखना शुरू कर दे, सीखता रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन कभी इल्म से सैराब नहीं होता यहाँ तक कि वो मौत के मरहले तक पहुँच जाता है।
علم سے سیراب نہیں ہوتا، اکتفا بالقلیل نہیں کرتا، تھوڑا سا سیکھ کے بیٹھ گئے انجان ہو گئے، نہیں، وہ تو سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے دروازے کھولے۔ یہ وہ دین نہیں ہے یہودیوں کا جس دین کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ علم تو علم سینہ ہے، دوسرے واقف نہیں ہو سکتے۔ جو علم سینہ کی بات کرے اس کا سلسلہ نسب یہودیوں سے ملتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ تو علم سینہ نہیں ہے، یہ علم کتاب ہے، یہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، بھیج دی گئی ہے آپ کے پاس، آپ سیکھیے، آپ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب کیا، آپ سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، آپ سے کہا یا ایھا الناس، آپ سے کہا یا عبادی، آپ سے اس کا ایڈریس ہے۔ لہذا سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں علم کے دروازے کھولے، ہر آدمی علم حاصل کرے اور درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے جوڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔